Hi everybody, Assalamu alaikum. My name is Mohammed Tufail. I am assistant professor at University of Sindh campus Badin, and presently I am talking you from the platform of the Paragon Academy Badin, and I welcome you all in this free online English language learning course. And today we are going to begin our 17th session. What we covered, we have completed our last 16 session on language skills, word classes, and sentence structure. Today's class, as it was scheduled, we would talk about verb. But before going to verb, I would recap this class with my previous classes, so that the students could make a sense out of that. Apart from this, some of the new students who were talking about the procedure to join this class, कि हम इस क्लास को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका तरीक़ेकार क्या होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीक़ेकार है। यह पैरागन एकेडमी का फेसबुक पेज है, जहाँ से मैं हर दूसरे दिन 4 से लेकर 5:30 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास कंडक्ट करता हूँ। ये फ्री है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। नंबर 1, इसमें जो भी हम मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं वो तमाम मटेरियल गूगल क्लासरूम के में अवेलेबल है। आप गूगल क्लासरूम पे जाएं और उसमें जो क्लास का कोड है जो इसी फेसबुक के पेज पे अवेलेबल है, आप वो कोड नोट कर गूगल क्लासरूम में जाएं, वहाँ से ये तमाम मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। और अगर किसको फेसबुक पे अगर प्रॉब्लम आ रही है देखने में, तो जो है ना यही मटेरियल यूट्यूब के चैनल पे भी अवेलेबल है, यू कैन यूज़ दैट एज वेल। So it is twice with you. Thank you very much. In our previous classes, I talked about that language is a source of communication, and when we want to learn language, essentially we need to focus on the 3 essentials. This is semantics. हमने words, vocab इकट्ठी करनी है. Then the second thing is phonetics. The way we pronounce words, that's very important. And the third is the syntax. Syntax means the composition and order of the words, how they make a sentence, paragraph, essays, and overall a complete language system where these different structures they function for a particular purpose. तो हमने ये तय किया था कि हम इस कोर्स के दौरान we would cover these 3 components, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि we need to equally focus on 4 skills, that's listening, speaking, reading, writing. So language, जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें इन 4 स्किल्स पे काम करना होता है। क्योंकि जो हमारी मदर टंग्स हैं उसमें 2 स्किल्स आप घर पे ऑलरेडी सीख लेते हैं, दैट्स लिसनिंग, स्पीकिंग, और स्कूल सिर्फ आपको रीडिंग राइटिंग सिखाता है। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद एनी L2 या कोई दूसरी लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे हैं, मेट बी जर्मन, मेट बी चाइनीज़, मेट बी रशियन, मेट बी इंग्लिश, जो आपके L1 नहीं है, तो फॉर दैट यू नीड टू फोकस ऑन ऑल 4 स्किल्स। एंड here we do the same thing. We equally give you opportunity to listen and to speak and to read and write. जहाँ तक स्पीकिंग की बात है तो मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ कि that you do self practice, because in this online sessions we cannot have this opportunity to everybody to speak. But once this situation is a normal, hope we would arrange these speaking classes जिस तरह आम तौर पे हम पैरागन में एक्टिविटीज़ के बेस पे डेली बेसिस पे कंडक्ट करते रहें। We would resume those classes. Till that, these sessions would help you towards improve your other areas like writing or reading and other language skills. So हमने जब skills की बात की थी these 4 skills के अलावा, तो हम आए थे कि हम language structure से जब word classes में enter हुए थे, तो we said that each word has its own function in a language. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नाउन को पढ़ते हैं तो ये देखें whether it's a proper noun or common noun. जो प्रॉपर होता है it should be written capital letter. If it is common, then don't write in a capital letter. Then common noun is the further classified into 2 groups, may it be uncountable noun or countable noun, जिनको हम गिनती कर नहीं सकते, मकसद उनकी शक्ल फॉर्म हैयत ऐसी है कि 1 2 3 की मदद से काउंट नहीं होते। वी कॉल देम अनकाउंटेबल, लाइक वाटर, लाइक rice, like sugar, like petrol, like milk, that would be uncountable noun.
फिर काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको वो 1 2 3 4 की मदद से काउंट हो सकते हैं, दे आर काउंटेबल। लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियर बताया था कि स्टार्स जो है ना अनकाउंटेबल नहीं है, स्टार्स काउंटेबल नाउन है, क्योंकि स्टार्स अनकाउंटेबल का मतलब ये नहीं होता कि उसकी तादाद ज़्यादा है, हम गिनकर पूरे नहीं पढ़ते। नहीं, अगर किसी की तादाद ज़्यादा है हम गिनकर पूरे नहीं पढ़ते, दैट इज़ इन्फिनाइट काउंटलेस। लेकिन अनकाउंटेबल से मुराद है कि उसको गिना जा ही नहीं सकता, उसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी। आप पानी को कैसे कहेंगे 1 पानी 2 पानी 1 दूध 2 दूध, दैट इज़ व्हाट इज़ द सेंस ऑफ द अनकाउंटेबल थिंग्स। So then you move forward from uncountable to this verb, pronoun. And whenever we are talking about pronoun, we need to focus on this cases. तो pronoun के अंदर मैंने 2 चीज़ें डिस्कस की थी कि pronoun के अंदर आप जो है ना, जिस तरह noun में देखें प्रॉपर है और कॉमन है, अगर कॉमन है तो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, और अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर है, प्लूरल है, और फिर उसके जेंडर्स जो हैं, ये चीज़ें आप क्लियर करके फिर नाउन को छोड़ा करें। इन द सेम केस व्हेन यू आर डीलिंग विद द प्रोनाउन, then be clear about the kinds and cases of pronoun, what are the kinds of pronoun and what are its cases, may it be subjective, may it be objective, may it be possessive adjective, may it be reflexive case, और उसके जो kinds हैं, how we use distributive pronoun, how we use demonstrative pronoun, how we use reflexive pronoun, how we use intensive pronoun. So we discussed that in the class of pronoun. Then my last class was designed for adjective, और मैंने वहाँ पे आपको clearly बताया था when you are going to deal with adjective, then be clear that what are the kinds of adjective, how the distributive adjectives are used, how proper adjectives are used, how the adjective of quality, adjective of quantity, adjective of numbers, how do we use them, they are very important. उसके बाद then we also talked about the degrees of adjective, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, दैट वाज द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। व्हेन वी हैव मोर देन 2 or 3 4 एडजेक्टिव्स, दे आर गोइंग टू क्वालिफाई वन नाउन। एक ही नाउन को अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं तो हमें पहले देखना होता है कि उसकी साइज़ क्या है, फिर उसका कलर क्या है, फिर उसका पर्पस डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर उसकी जो रीजन क्या है, फिर लास्ट में हम उसके पर्पस पे आते हैं। तो उसकी एक तरतीब मैंने जो बताई थी कि हमने किस तरीके से उनको ऑर्डर में रखना होता है। सो दैट वाज एडजेक्टिव। वर्ब में जब आते हैं तो वर्ब से हम वी आल्सो डील विद द काइंड्स ऑफ वर्ब्स एंड द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो वर्ब में इन चीज़ों का आपको अहमियत जो है ना वो रखना होगा कि व्हाट आर काइंड्स ऑफ वर्ब्स एंड व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जिस तरह एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, इस तरह वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं जो हमें जो है। फिर सिर्फ ये नहीं कि हमें मेन वर्ब पे काम करना होता है, बट वी हैव टू आल्सो वर्क ऑन इन एडिशन टू मेन वर्ब्स, आप उसको कहें, आप उसको एक्शन वर्ब कहें, we have to work on these auxiliary verbs, what we call helping verbs or tense verb, finite verb. Then we have to also work on linking verbs. Then we have to work on these copular verbs. We have to also work on modal verbs. Then we also need to work on this what we call causative verbs. तो वर्ब्स में इन पे हमें काम करना होता है कि कॉजेटिव वर्ब को कहाँ यूज़ करना है, लिंकिंग वर्ब को कहाँ यूज़ करना है, कपलर वर्ब को कहाँ यूज़ करना है, मॉडल वर्ब कहाँ यूज़ होते हैं, फिर एक्शन वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब्स के फॉर्म्स क्या होते हैं। तो दीज आर द एरियाज व्हाट वी नीड टू कवर व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद दिस एरिया ऑफ वर्ब। तो वर्ब पे शायद हमारे 2 क्लासेस में चलना पड़े, बिकॉज दिस इज़ अ बिग चैप्टर एंड वी विल मे बी 3, क्योंकि टेंस भी व्हेन वी विल टॉक अबाउट टेंस हमेशा वर्ब, क्योंकि टेंस मीन्स टाइम। टाइम से मुराद क्या होती है? टाइम से मुराद ये होती है कि टाइम ऑफ एक्शन, वट एवर द एक्शन इज़ बीइंग डन, जो भी काम हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट रीज़न इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वी आल्सो डिस्कस ऑलवेज व्हेन एवर यू डील विद द गुड बुक्स, दे ऑलवेज डिस्कस वर्ब टेंस इन द चैप्टर ऑफ वर्ब, ओके। एंड एक्चुअली it is the part of that, so we may take 2 or 3 classes to deal with this verb, because this is very much integral part of language and it has multiple ways to deal with this language. तो हम verb पे को उतना टाइम देंगे so that we could justify with this area. So now let us move forward. Today's we will go with the basic introductions of verbs and its basic kinds. And then we will also in the next class, we may, if we find time today, we will go into the advanced areas of verbs, where verbs are being used and how they are being what are their functions. So we will talk about as well. So let's move towards our topic, and it is kinds of verbs and how they are being used, please.
So now look at that when we are talking about types of verb, the first thing comes, okay, the first type or first kinds we talk about action verbs. अब एक्शन वर्ब्स आर द वर्ब्स दे शो अ पर्टिकुलर एक्शन, जिसमें सेंटेंस में कोई भी काम होता है तो हम इनको जो नॉर्मली एक्शन वर्ब्स भी यूज़ करते हैं. आगे चल के मैं फिर इसको करूँगा कि व्हाट आर इंटेंसिव वर्ब्स एंड व्हाट आर एक्सटेंसिव वर्ब्स, लेकिन फॉर टाइम बीइंग in order to build a basic concepts I am going to deal with that action verb and then ये action कैसे होते हैं, how they are intensive and how they are extensive, we will talk about in advanced level. So if when you will talk about action verb, they show a particular action. जिस भी sentence में कोई ना कोई action हो रहा होता है. I write a letter, write is an action. They are playing, play is an action. They come to meet me, come is an action verb. We are going to Karachi, go is action verb. She reads a book, read is action verb. Let us walk home, walk is action verb. So laugh, run, sneeze, sneeze होता है छींकना. Yawn, नींद आती है तो जमाया लेना जो होता है, that's yawning. Belch, जब हम खाना खाते हैं पेट भर जाता है तो हम जो डकार देते हैं, this called belching. Sift, जब आटा हम रोटी पकाते हैं तो उससे पहले आटे को छानते हैं, जो है जहाँ छन्नी में जो आटे को जो ना वो छाना जाता है, तब वी यूज़ वर्ड सिफ्टिंग, सिफ्ट. नीड आटे के लिए यूज़ होता है जब आटे को गूंदा जाता है, गूंदना, आटे को गूंदना, नीड. बेक, फिर हम उसको पकाते हैं, पहले हम आटे को सिफ्ट करते हैं, फिर नीड करते हैं, जो ना गूंदते हैं, देन वी बेक, उसके बाद पकाते हैं. देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ब बेक एंड कुक. ओके, यू कुक खरी एसेट्रा, लेकिन जिस चीज़ को आप रोटी वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वी बेक देम, दे आर बेकरी. दिस व्हाट वी हैव यूज्ड टर्म बेकरी. व्हेन यू गो टू बेकरी, बिस्किट्स आर ऑलमोस्ट बेक्ड इन ओवन टाइप ऑफ थिंग्स वेयर दे आर बेक्ड. ओके, सो च्यू, उसके बाद हम उनको चबाते हैं, देन वी सवालो, देन फिर निगलते हैं, देन वी डाइजेस्ट. सो दीज ऑल आर वर्ब्स. मैंने जिस तरह अर्ज किया कि वर्ब को जब हम डिस्कस करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. ओके, that is almost there are 5 forms of verb. उसके बाद verb अपने noun बनाते हैं, may be gerund noun or it is a specific noun. तो आगे चल के verb जो है ना यहाँ से अपने noun की शेप भी ले लेता है, जिसको हम verb noun कहते हैं, verbal noun कहते हैं, gerund noun कहते हैं. तो let us understand what are the forms of verb. verb के forms कैसे होते हैं. When you look at the verb, जब भी verb शुरू होता है, जो उसका फर्स्ट फॉर्म होता है वो उसकी रूट कहलाती है. What we call the root of verbs, that is always used in imperative sentences. Imperative sentences आपको याद होगा, I talked about the sentences where you pass an order or request. Suppose you say come here, shut the door, or you say that stand up, leave this book. These are imperative sentences. So write a letter, ये इम्परेटिव रूट है, फर्स्ट ये रूट है वर्ब की. और जब रूट के साथ हम प्रेपोजिशन ट लगाते हैं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है, जिसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं. इन्फिनिटिव 2 किस्म के होते हैं. एक वो इन्फिनिटिव होते हैं जिसके आगे प्रेपोजिशन ट लगा होता है. एक दूसरे होते हैं जो काम इन्फिनिटिव का करते हैं लेकिन उसके आगे प्रेपोजिशन ट नहीं लगा होता, तो ऐसे को हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं. बेयर इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है कि दे आर विदाउट इन्फिनिटिव, दे आर बेयर इन्फिनिटिव, वी कॉल देम एज ए बेयर इन्फिनिटिव. तो अब मिसाल के तौर पे आई वांट टू राइट अ लेटर. टू राइट जो है ना ये इन्फिनिटिव है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन आई राइट अ लेटर, ये जो राइट है, ये राइट यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम कर रहा है लेकिन इसके आगे प्रेपोजिशन ट नहीं है, वी कॉल इट बेयर इन्फिनिटिव. अब आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इन्फिनिटिव लगाते हैं, कहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आप खेन अगर लगा रहे हैं, मॉडल वर्ब खेन, तो खेन के बाद हमेशा आपको बेयर इन्फिनिटिव लगाना पड़ेगा. आई कैन वेट, आई कैन प्ले, आई कैन कम. अगर आप मे लगा रहे हैं मॉडल वर्ब तो भी आपको बेयर इन्फिनिटिव लगाना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते आई मे टू वेट, आई मे वेट. आप ये नहीं कह सकते आई कैन टू प्ले, आई कैन प्ले, आई कैन ड्राइव. तो इसी तरीके से अगर जो ना वांट है, वांट के बाद हमेशा इन्फिनिटिव आता है. वांट टू राइट लेटर, आई आर्ट टू प्ले, आर्ट टू OUGHT, आर्ट टू प्ले, या दे यूज टू वेट. तो डिपेंड करता है
कौन सी स्ट्रक्चर इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करती हैं, कौन सी स्ट्रक्चर्स बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करती हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब भी यूज़ करते हैं तो हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं कि आई राइट ए लेटर, शी गोज़ होम, दे प्ले क्रिकेट। तो ये जो है ये इन्फिनेटिव है, लेकिन ये जो इन्फिनेटिव दिखने में बिल्कुल रूट जैसा होता है, लेकिन रूट में आर्डर होता है ना, इसमें आर्डर वाली वो बात नहीं। आई राइट ए लेटर में ख़त लिखता हूँ, इसमें वो बात राइट की नहीं है। व्हाट यू फाइंड इन दिस फर्स्ट राइट ए लेटर, दैट इज़ एन आर्डर कि ख़त लिखो, दैट्स आर्डर इन अ फर्स्ट सेंटेंस। फिर वर्ब अपनी सेकंड फॉर्म में जाता है, आई रोट ए लेटर, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म में जाता है, आई हैव रिटन ए लेटर, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स, आर वी कॉल इट अ पास्ट पार्टिसिपल। तो रूट के बाद जो है वी कॉल इन्फिनेटिव के बाद वी कॉल पास्ट फॉर्म एंड देन वी से पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद वर्ब जो है ना ING लगाकर अपनी फोर्थ फॉर्म बनाता है, इसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। वी आल्सो कॉल इट अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चौथी जो वर्ब की फॉर्म होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। और चौथी फॉर्म के बाद फिर जो वर्ब अपना अलहदा नाउन बनाता है, जिसको हम जेरेंट कहते हैं या वर्बल नाउन कहते हैं। अब इसमें एक बात नोट करें कि कुछ ऐसे नाउन होंगे जो अपने अलहदा सेपरेट नाउन बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपना अलहदा सेपरेट नाउन नहीं बनाते। तो इंग फॉर्म को जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दे यूज़ इट एज ए नाउन एंड वी कॉल इट अ वर्बल नाउन। तब हम उसको वर्बल नाउन कहते हैं, क्योंकि वो वर्ब से जो ना आगे नाउन बनता है। अब देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पे देखें आई एम राइटिंग ए लेटर, ये जो राइटिंग है ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, इंग फॉर्म कहें आप इसको। लेकिन नीचे जो है ना माई राइटिंग इज़ वीक, ये जो राइटिंग है ये एक चीज़ का नाम है, मेरी लिखाई ख़राब है, माई राइटिंग इज़ वीक। ये राइटिंग जो है ना एक चीज़ का नाम है। अब ये नाम कहाँ से लिया है, ये जो है ना नाउन जो है ना इसी वर्ब की चौथी फॉर्म को बितौर नाउन यूज़ किया है। तो जब वर्ब अपने नाउन नहीं बना पाते सेपरेट, तो वो फिर अपने इंग फॉर्म को एज ए नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, और ऐसे इस्तेमाल को हम जो है जेरेंट कहते हैं या वर्बल नाउन कहते हैं। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो इस तरीके से यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे बैटिंग को आप वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। बैटिंग, आई एम बैटिंग, ये वर्ब है, काम है, जारी है। माई बैटिंग इज़ बैड, ये बैटिंग एक चीज़ का नाम है। ही इज़ अ बाउलिंग, ये वर्ब है। हिज बाउलिंग इज़ स्ट्रांग, इसकी बॉलिंग स्ट्रांग है। यहाँ पे बॉलिंग एक चीज़ का नाम है, दैट इज़ अ नाउन, जेरिन नाउन, इंग फॉर्म है। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, ये वर्ब है। माई कमिंग विल मेक नो डिफरेंस, मेरे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माई कमिंग विल मेक नो डिफरेंस। दिस कमिंग, ये कमिंग जो है ना दिस इज जेरिन नाउन, एक चीज़ का नाम है। तो ये आप देखेंगे कि ये फोर्थ फॉर्म कहाँ पे है और नाउन कहाँ पे है। नाउन को भी हम यूज़ करेंगे, फिर हम इन्फिनेटिव का भी यूज़ सीखेंगे आगे चल के। जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों का इस्तेमाल जो एडवांस लेवल पे है, वी विल टॉक अबाउट दिस। अब आई वांट टू प्ले, ही यूज्ड टू प्ले, शी आस्क्ड टू वेट। यहाँ पे देखें इनमें इन्फिनेटिव किस तरह यूज़ हो रहा है। आई वांट टू प्ले, ही यूज्ड टू प्ले, आई आस्क्ड टू प्ले, वेट, ओके। लेकिन आई कैन गो, यहाँ पे आप तो नहीं लगा सकते। ही मे गो, यहाँ पे आप तो नहीं लगा सकते। ही मे गो, आप ये नहीं कह सकते ही मे टू गो। ही विल कम, दैट्स नाइट, आप ये नहीं कह सकते ही विल टू कम। शी शुड वेट, आप ये नहीं कह सकते शी शुड टू वेट। ही वुड प्ले, आप यहाँ पे ये नहीं कहते ही वुड टू प्ले, नो, ही वुड प्ले। ये जो स्ट्रक्चर से देखें इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव हैं, तो इनको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, इनको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो अब ये चार फॉर्म जो आपने वर्ब्स के देखे, अब इसमें देखें जिस तरीके से मैंने बताया कि कुछ नाउन जो होते हैं ना वो अपने अलहदा नाउन बना लेते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो ये काम नहीं कर पाते। अब देखें सेटिस्फाई को देखें, सेटिस्फाई इसकी रूट है। फर्स्ट फॉर्म सेटिस्फाई, टू सेटिस्फाई, सेकेंड फॉर्म सेटिस्फाइड, थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड, फोर्थ फॉर्म सेटिस्फाइंग, और इसका नाउन क्या बना, सेटिस्फैक्शन। अब देखिए इसने अपना सेपरेट नाउन बना लिया, तो इसको हम जेरेंड नहीं कहेंगे, ये सेपरेट नाउन है। लेकिन जब ये अपना सेपरेट नाउन नहीं बना सकता, तो चौथे फॉर्म को जब एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था, बैटिंग, राइटिंग, रीडिंग, बॉलिंग, कमिंग, गोइंग, जब उसको बतौर नाउन यूज़ करा था, तो फिर वो जेरेंड नाउन या वर्बल नाउन कहलाता है। ये एक और मिसाल देखें, अप्लाई,
ये वर्ब है, रूट है. To apply, infinitive, applied, applied, third form, applying, fourth form, application. यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे my applying is wrong, आप कहेंगे my application is incorrect. My application is incorrect. ठीक है, वहाँ पे आप क्या कह रहे थे कि my writing is weak, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे my applying is wrong, my application is wrong, क्योंकि ये सेपरेट अपना नाउन बना चुके हैं. अब राइट देखें, अपना अलहदा नाउन नहीं बना पाया. राइट, 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 रोट, रिटन, राइटिंग, राइटिंग, ये जेरिन नाउन है. कम, टू कम, केम, कम, कमिंग, कमिंग, जेरिन नाउन है. ये बैट को देखें, बैटिंग, जेरिन नाउन है. तो ऊपर जो आपने दो एग्जाम्पल देखे सेटिस्फेक्शन के और उसके, तो उसमें आपने देखा था कि वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें अगर आप देखें तो ये अपने अलहदा नाउन बनाने में कामयाब चले गए. जिस तरह सेटिस्फाई अपने अलहदा नाउन सेटिस्फेक्शन बना लिया, अप्लाई ने अपना अलहदा नाउन एप्लीकेशन बना लिया. But come couldn't make it its independent noun. In the same sense, bad couldn't make its independent noun. Right couldn't make its independent noun. Therefore, they are using its present participle as a noun. तो ये जो noun बनता है ना, my writing is a weak, that writing, आप इसको verb भी यूज़ कर सकते हैं. writing को I am writing, ये verb है. my writing is a week. coming को आप verb के तौर पे यूज़ करें. I am coming home, coming, that's a verb. my coming is a good news, that's a noun. तो इस तरीके से अब नीचे आप इस सेंटेंस में देखें कि किस तरीके से वर्ब और जेरिन का फ़र्क आपके सामने रखा गया है. आई एम राइटिंग, माई राइटिंग इज़ अ वीक, ये वर्ब है, ये जेरिन है, नाउन है. आई एम बॉलिंग, माई बॉलिंग इज़ अ फास्ट, ये वर्ब है, ये नाउन है, एक चीज़ का, एक अमल का नाम. दैट इज़ ही इज़ गोइंग, दैट्स अ वर्ब. हर गोइंग विल मेक नो डिफरेंस, ये डिफरेंस से को यहाँ पे ट्रीट करें. हर विल मेक नो डिफरेंस, ओके, हर गोइंग विल मेक नो डिफरेंस. Her going will make no difference. That is noun. I am coming. My coming is useless. 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 मेरा आना फजूल है. मेरा आना. I am coming. मैं आ रहा हूँ. देखिए coming verb and coming gerund. So this is noun. He's a playing. His playing is futile. इसका खेलना useless है. तो आपने देखा नाउन और जेरिन का जो फ़र्क आपके सामने आया. अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है जो हर जगह पर यूज़ हो रहा है. सेटिस्फाई हिम, दिस इज इम्परेटिव. आई वांट टू सेटिस्फाई हिम, दिस इज इन्फिनिटिव, फर्स्ट फॉर्म. आई सेटिस्फाइड हिम, दिस इज पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म. आई हैव सेटिस्फाइड हिम, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म. आई एम सेटिस्फाइंग हिम, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म. इट इज़ द मैटर ऑफ माई सेटिस्फैक्शन, दिस इज अ नाउन. ओके, अब देखिए यहाँ पे जो नाउन यूज़ हो रहा है ना, वो जेरिन नहीं है. ये इसने सेपरेट अपना नाउन बना लिया है, तो हम इसको जेरिन या इस तरह वर्बल नाउन के तौर पे इसको ट्रीट नहीं करेंगे. ये यहाँ पे जो है सेपरेट नाउन बना है. तो और जब ये अपना सेपरेट नाउन नहीं बना पाते, तो फिर ये जो है ना वो जेरिन का या उसका सहारा लेते हैं. तो वी जस्ट कॉल देम दैट वर्बल नाउन आर एसेट्रा. तो इसी तरीके से वी जस्ट डू. तो पहले जो हमने देखा, द फर्स्ट टाइप वाज अबाउट नाउन, what is about verb, action verb. फिर action verb के हमने forms देखे और form में देखा कि infinitive versus root, what's infinitive, what's bare infinitive, what's past participle, what's present participle. Then how the gerund noun or independent nouns are made and what are their function. तो ये तो पहला एक verb जो ना वो खाइन थी. Now come to helping verb or auxiliary verb or tense verb. हम इनको ऐसा क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा समझें. देखिए, जब भी कोई वर्ब होता है तो कोई वर्ब मीन्स वर्क. जब भी कोई काम होता है तो उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम, जिसको हम कहते हैं टेंस. टेंस का मतलब बेसिक टाइम है. टाइम, दिस इज टेकन फ्रॉम ग्रीक टर्म, ओके, बट दिस इज टाइम. किसका टाइम? जाहिर बात है, हम जो काम करें उसका टाइम. तो जो टेंस का जिक्र जिस तरह मैं कह रहा था, नहीं, वर्ब के साथ कनेक्टेड है. ये बेसिकली बताता है कि जो काम हो रहा है उसका टाइम क्या है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस हेल्पिंग आर एक्सिलरी आर टेंस वर्ब,
तो ये वो वर्ब हैं जो आपको उसका टाइम बताते हैं कि जिस आप जो वक्त की बात करें कि वो कब है, उसका टाइम, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ दैट एक्शन। डू और डज ये किस टेंस को जाहिर कर रहा है, इज़, एम, आर, हैज़ बीन, या ये तमाम जो टेंस हैं ये प्रेजेंट टेंस की निशानियाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सब उसकी निशानियाँ हैं। वी कॉल देम एज दैट प्रेजेंट टेंस। In the same fashion, if you look at did and was and were and had been, ये वो निशानियाँ हैं, ये वो साइंस हैं, जब भी यूज़ होते हैं तो they refer to past. तो these are auxiliary verb or helping verb for past tense. May it be past indefinite, may it be past continuous, may it be past perfect, may it be past perfect continuous, लेकिन they refer to past tense. अब देखें यहाँ पे मैं इंटेंसेस की मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं इंटेंसेस की सेपरेट क्लास लूँगा तो उसको हम वहाँ डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब फॉर ए स्पेसिफिक टेंस, हियर वी विल टॉक अबाउट जनरल थिंग्स। जस्ट आई एम टॉकिंग दैट व्हाट दीज हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स आर एंड व्हाट आर देयर फंक्शन इन द लैंग्वेज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। So the most important thing is their function. So is the case with this. Look at future tense. Then you have a shall, we have a will, or shall be, or will be. These are the things what we use for future. Or shall have, or will have, or shall have been, or will have been. So we use them as a future tense. So these verbs, auxiliary verbs, they are used to identify that what tense they are going to refer to, and they help us like that. But they also would work as a linking verb. इनमें से कुछ लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी काम कर सकते हैं, बट वी विल टॉक अबाउट व्हेन दे आर यूज्ड एज ए लिंकिंग वर्ब एंड वेयर दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब. वी विल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम. Now if you move forward, then look at this here. Now how these are going to qualify a particular tense. When we say she was writing, here this was shows that what is means she was writing. Look, they are going to refer this tense. She was writing means that is past. It's going to refer to past. She will be writing. Will shows that we are going to talk something about future. She will do something, but this is future. Will is going to determine the tense. That's going to show the future times, future time. He's going to Karachi. Is good. Is going to tell us where the action, in which time the action is going to take place. Is present की sign है. He was going to Karachi. Was past की sign है. He doesn't play. Does, that is present. He didn't play. That is the past. He will not play. That's future. They didn't go. That is the past. So did, will, do, does, is, am, will be, shall be. They could determine that what tense we are going to refer to, what time we are going to refer to. That is where we just treat them as a auxiliary verb or helping verb. We call them as a tense verb. They help us to identify the tense. Now you move forward. Look at that. ये जिस तरह मैंने कहा कि there is a very slight difference between a linking verb and that helping verb or auxiliary verb. जब आप इनको एज ए लिंकिंग वर्ब के तौर पे ट्रीट करते हैं तो ये सेंटेंस में लिंक करते हैं, और जब ये लिंक कर रहे होते हैं तो लिंक का मतलब यहाँ पे फिर एक टर्म और यूज़ हो रहा है कापुलर वर्ब के। देखिए कापुलेशन भी असल में जो होती है वो मुबाशरत होती है या एक किस्म का इत्तमा होता है, कॉम्बिनेशन। अब इसी सेंस में ये जो दिस टर्म व्हेन वी कॉल इट कापुलर वर्ब, ये भी सेंटेंस के अंदर एक किस्म का लिंक डेवलप करते हैं। तो अब आप देखिएगा कि इसमें ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है और कहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो इनके बाद एक्शन वर्ब आता है, और जब ये लिंकिंग वर्ब होते हैं तो इनके बाद या नाउन फ्रेज आएगा या एडजेक्टिव फ्रेज आएगा जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब देखें ये जो हेल्पिंग वर्ब है, HVI मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब, AV से मुराद है एक्शन वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब जब यूज होगा तो इसके बाद एक्शन वर्ब आएगा, और जब जब ये लिंकिंग वर्ब आएगा, LV लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम करेगा, तो इसके बाद या नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। फॉर एग्जांपल अली इज राइटिंग, यहाँ पे इसके बाद राइटिंग है, ये फोर्थ फॉर्म है, ये एक्शन वर्ब है, राइटिंग एक्शन वर्ब है। अब एक्शन वर्ब को टेंस तय करेगा, तो इसके लिए ये है इसका टेंस वर्ब है, इसके टाइम को डिटरमिन करा है कि ये जो काम हो रहा है किस टाइम पे हो रहा है। उसके अलग अली इज ए टीचर, ये टीचर क्या है, टीचर इज नाउन, और मैंने आपको बताया कि ये क्योंकि ये वो सेंटेंस हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट में से सिर्फ कॉम्प्लीमेंट निकला। आप याद करें कि मैंने सेंटेंस के आपको दो पार्ट पढ़ाए थे, सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और अगर इसको आप देखेंगे तो इस प्रेडिकेट में से सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, अली जो सब्जेक्ट है, इज ए टीचर ये पूरा प्रेडिकेट है, और ये पूरा प्रेडिकेट क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, जो नाउन से उसको जो है ना वो कंप्लीट कर रहा है। सो अली इज ए टीचर, अली इज ए टीचर। इसी तरीके से दे आर वेटिंग, यहाँ पे आर इज ए लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब एंड इज गोइंग टू क्वालिफाई वेटिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब। दे आर सिक, यहाँ पे देखें आ के बाद सिक आया है, सिक क्या एडजेक्टिव है, तो ये जो है ना लिंकिंग जो है ना वर्ब है, यहाँ पे इज और आर, इन दोनों सेंटेंस के अंदर दे आर लिंकिंग वर्ब, इन दोनों सेंटेंस के अंदर दे आर हेल्पिंग वर्ब। So that's the difference between helping verb and a linking verb. Some of these verbs they could perform dually. They can also be linking verb. They can also be helping verb. लेकिन अगर इनके बाद एक्शन वर्ब आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, और इनके बाद अगर नाउन और एडजेक्टिव आ जाए तो देन दे वुड टर्न टू बिकम एज ए लिंकिंग वर्ब, जिस तरीके से मैंने अब नीचे ये है कि गन साउंड्स लाउड। अब यहाँ पे साउंड देखें, साउंड इज एक्शन वर्ब, बट हेयर यू से दैट यू साउंड लॉजिकल, ये साउंड जो है, अब ये जो है ना आप सही जो है ना वो महसूस हो रहे हैं या आप दुरुस्त लग रहे हैं अपनी चॉइस में, यू साउंड लॉजिकल इन योर चॉइस। ये साउंड का मतलब है कि आप दिख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, लॉजिकल महसूस हो रहे हैं, लॉजिकल दिख रहे हैं अपनी चॉइस में, मर्जी में, दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल, दैट लिंकिंग वर्ब। तो वो साउंड जो इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हेयर साउंड इज बेसिकली, ये जो साउंड था दैट इज़ एक्शन वर्ब, और ये जो साउंड है दैट इज़ वी कॉल देम इज लिंकिंग वर्ब। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लिंकिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब। अब आते हैं तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि फर्स्ट एक्शन वर्ब, व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, गुड। फिर हमने ये कहा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड जेरे नाउन। फिर हमने जो है ना वो टेंस वर्ब सीखे कि व्हाट आर द टेंस वर्ब, बिकॉज दे रेफर टू अ पर्टिकुलर टेंस, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैड, हैव, दे शो द टेंस। वो उसको समझना इसलिए लाजमी है कि आपको टेंस का पता चले कि आप किस टाइम पे खड़े हैं। देन यू टॉक अबाउट दिस फोर्थ, थर्ड टाइप वॉज लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जो सेंटेंस, जब सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ करते हैं तो ये यूज़ होते हैं, और ये नाउन या एडजेक्टिव का जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट के साथ सेंटेंस को कंप्लीट कराते हैं। अगर इनके बाद फ़ौरन वर्ब आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, जिस तरह इज़ राइटिंग। अगर इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, इज़ अ टीचर या आर सिक, तो ये सिक या टीचर जब नाउन या एडजेक्टिव आ जाएं देन दे आर कॉल्ड एज लिंकिंग वर्ब। अब हम चौथी जो वर्ब की टाइप होती है दैट्स कॉल्ड मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का बेसिकली जो काम होता है वो ये होता है कि मॉडल वर्ब हमें ये बता रहा होता है कि इनका एक स्पेशल पर्पस होता है जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, देयरफॉर वी कॉल देम एज ए मॉडल वर्ब। इनका एक मखसूस काम है, मखसूस फंक्शन है जिसके लिए दीज ऑल मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, we have a can, we have a could, we have a may, we have a might, we have a should, we have a had better, we have ought to, we have used to, we have to dare, we have to must। ये मोस्ट कॉमन जो है ना मॉडल वर्ब हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, सो वी कॉल देम एज ए मॉडल वर्ब। नाउ लुक एट दैट। पहला कैन, कैन शोज द पोटेंशियल, आर एबिलिटी, आर कैपेबिलिटी ऑफ द डूअर्स। इट शो द पोटेंशियल, इट शो द कैपेबिलिटी। पोटेंशियल मीन्स आप कैन कब लगाते हैं, जब आप कोई अपनी पोटेंशियल को जाहिर करें कि दैट यू कैन डू अ पर्टिकुलर थिंग्स। वी यूज कैन, आई कैन प्ले, इसका मतलब है कि आप ये काम कर सकते हैं, यू हैव अ पोटेंशियल टू डू दैट थिंग, यू वांट टू शो योर एबिलिटी।
or you want to show your capability. So when you want to demonstrate this capability or ability or your potential, we use can. इससे जाहिर है कि आप बता रहे हैं कि आपके अंदर एक काम करने की सलाहियत है. I can teach, I can drive, I can write, I can speak. That shows that you have a potential, you have an ability. तो can जो ये जाहिर करता है कि आपके अंदर किसी चीज़ की सलाहियत है. खुद इसका पास्ट टेंस है, लेकिन अगर आप खुद को प्रेजेंट में भी यूज़ करना चाहें तो ये बता दूं कि जब आप खुद को प्रेजेंट में यूज़ करेंगे तो उससे मुराद है कि आपकी जो सलाहियत है वो थोड़ी कम हो जाएगी. मिसाल के तौर पे आपको एक ड्राइवर चाहिए गाड़ी के लिए. 2 बंदे आपके पास आते हैं, उनसे आप पूछते हैं कि कैन यू ड्राइव अ कार. तो एक बंदा कहता है यस आई कैन ड्राइव अ कार. दूसरा बंदा कहता है आई खुड ड्राइव अ कार. खुद ड्राइव अ कार का मतलब ये होता है कि मैं भी चला लूँगा, बट आई कैन ड्राइव अ कार, मैं चला सकता हूँ. वो बंदा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है. तो एज ए ड्राइवर आपको किसको चुनना चाहिए? नॉट द पर्सन हु इज गोइंग टू से दैट आई खुड ड्राइव अ कार, मैं चला लूँगा, बट यू शुड टेक अ पर्सन जो कह रहा है कि आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ. वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है. एक तो ये कि आप कुड को प्रेजेंट में लगाकर उसके पोटेंशियल को कम करते हैं. बाकी जो दूसरा कुड का इस्तेमाल होता है वो डायरेक्ट माजी के लिए होता है. जब आप कोई भी काम माजी में करने के कैपेबल थे तो आप कुड लगाते थे. मिसाल के तौर पे आपका कोई दोस्त आया और वो रात को देर से, फिर उसको गाड़ी वगैरह नहीं मिली, परेशान हुआ. 2 दिन के बाद उसने आपको पूरा माजरा बताया तो आपने उसको बताया कि यार कोई मसला नहीं था, आप मुझे फ़ोन कर देते. आई कुड पिक यू, आई खुद पिक यू, मैं आपको पिक कर सकता था. मकसद वो माजी में आप अपने पोटेंशियल को जाहिर करें. सो दिस हाउ यू कैन यूज कैन एंड खुद. ओके, नाउ कम टू द यूज ऑफ मे. ओके, सेकंड यूज इज मे. अब मे को जब हम इस्तेमाल करते हैं दैट वी हैव 4 वेज टू यूज दिस मे. सेकंड एज ए मॉडल वर्ब. मे के 4 इस्तेमाल होते हैं. द फर्स्ट यूज ऑफ मे इज ओनली फॉर परमिशन. When you are going to give a permission, किसी को इजाज़त दे रहे हों या इजाज़त ले रहे हों, in a both sense we use this may. Suppose you say may I come in, अच्छे से pronounce करें come in. अक्सर ये देखें एक आप हमारे यहाँ ट्रेंड बन चुका है may I come in. What is this? I don't understand what this may I come in. So please make it come in. May I come in? आप इजाज़त मांग रहे हैं या आप इजाज़त देते हैं. May he use your car? No, he may not. आप इजाज़त दें या इजाज़त लें या इजाज़त मांगने के लिए या इजाज़त देने के लिए हम मे को इस्तेमाल करते हैं. मे आई कम इन, यू मे. तो ये यू मे जो है ना वो इजाज़त दी जा रही है. दैट्स एक मे का एक इस्तेमाल इजाज़त के लिए. दूसरा मे का इस्तेमाल होता है फॉर पॉसिबिलिटी. कोई इम्कान हो, कोई प्रॉबेबिलिटी हो. दैट्स नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर, but there is a simple probability, there is a simple possibility. So he may phone, हो सकता है फोन आए. It may rain, हो सकता है बारिश हो. See, we are not sure about it. This is a possibility, this is a probability. और मकसद एक चीज़ का इम्कान है, we are not sure. आपको डॉक्टर चाहिए, आप किसी हॉस्पिटल पे जाते हैं, आप पूछते हैं कि डॉक्टर आएगा, तो वहाँ पे कहा जाता है कि yes, he may come. तो डॉक्टर के आने के इम्कानात हैं. This is chance or probability or possibility. अच्छा, यहाँ पे भी एक बात, वैसे मे का इस्तेमाल या जब माजी में हम यूज़ करते हैं तो माइट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हम माइट को प्रेजेंट में भी लगा सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपको इमीडिएटली डॉक्टर चाहिए और एक हॉस्पिटल पे आपको बताया जाता है कि डॉक्टर मे कम, और दूसरी हॉस्पिटल पे आपको बताया जाता है कि डॉक्टर माइट कम. तो जो बंदा कह रहे हैं ना कि डॉक्टर माइट कम, प्रेजेंट के लिए अगर यूज़ करा है तो उसमें उसका मतलब ये है कि उस माइट में डॉक्टर के आने के चांसेस और कम हैं. तो आपको कहाँ वेट करना चाहिए? जो बंदा कह रहा है कि डॉक्टर मे कम, जो मे कम कह रहा है वो वहाँ पे इम्कान ज़्यादा है बेनिस्बत उस सेंटेंस के जहाँ पे हम कह रहे हैं कि डॉक्टर माइट कम. तो इस तरह हम माइट को प्रेजेंट में भी लगाकर इसकी प्रोबेबिलिटी को, इम्कानात को और कम कर सकते हैं. बाकी वैसे जो माइट का इस्तेमाल होता है वो डायरेक्ट पास्ट के लिए यूज़ होता है कि ही माइट कम, ही माइट वेट, लाइक दैट. Good. So we use he may or he might, may for possibility. तीसरा जो may का इस्तेमाल होता है वो दुआ या बददुआ के लिए होता है. लेकिन इस बार ही हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस में may को आगे ले जाते हैं. जिस तरह ये है कि may God bless you,
ये जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज़ यूज टू शो यू दैट फ्यूचर दुआ के लिए, टू फॉर योर प्रे, फॉर विश, फॉर डिज़ायर, इवन फॉर कर्स होता है कि उसको बद्दुआ देना. सो यू कैन यूज इट फॉर कर्स और डिज़ायर और प्रे और विश. मे गॉड ब्लेस यू. अक्सर जब लोग कहते हैं ना कि गॉड्स मे ब्लेस यू, जब गॉड मे ब्लेस यू, आपको गॉड के बाद मे को रखेंगे, देन यू विल गो इन अ सेकंड रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. फिर ये होगा कि हो सकता है खुदा आप पे जो है ना वो मेहरबानी करे, रहमत फरमाए, तो दैट इज़ पॉसिबिलिटी. अगर दुआ देनी है तो फिर मे को आगे रखें. ये ना कहें कि गॉड मे हेल्प यू, ये इसका मतलब है कि हो सकता है खुदा आपकी मदद करे. लेकिन अगर दुआ देनी है तो आप कहें कि मे गॉड हेल्प यू. अब देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. यहाँ पे ऊपर है इट मे रेन, हो सकता है बारिश हो, इसका मतलब है इम्कान है. लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है? मे इट रेन, अल्लाह करे बारिश हो. ये दुआ है एक किस्म की. मे इट रेन, अल्लाह करे बारिश हो. देखिए मे को आगे रखे और आखिर में इन तमाम सेंटेंस के एक को एंड में हम क्या दे रहे हैं? एक्सक्लेमेशन साइन दे रहे हैं. वाई वी आर पुटिंग एक्सक्लेमेशन साइन? ये दुआया कलमात है. मे यू डाई, अल्लाह करे तुम मर जाओ. मे यू ब्रेक योर लेग, अल्लाह करे तुम्हारी टोंग टूटे. सो यू कैन यूज इट फॉर प्रे, फॉर कर्स, वट एवर. द लास्ट टू सेंटेंसेस आर नेगेटिव, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किए हैं कि क्योंकि ये लैंग्वेज का पार्ट है. तो आई डोंट विश टू टीच बट आई वांट टू टीच. द रीजन इज दैट्स द पार्ट ऑफ लैंग्वेज. So this is how we can use may for purpose, may for permission, and may for possibility, and may for pray or wish. और चौथा जो may का इस्तेमाल होता है that is for जो हम यूज़ करते हैं कि मकसद किसी चीज़ का, आई एम गोइंग टू कराची सो आई मे अटेंड द मीटिंग, ताकि मैं मीटिंग अटेंड करूं, तो ये may का इस्तेमाल होता है. यहाँ पे देखें इसको यूज़ किया गया इट मे रेन, मे इट रेन. इट मे रेन, हो सकता है बारिश हो, अल्लाह करे बारिश हो. द डॉक्टर मे कम, डॉक्टर हो सकता है आए. और नीचे लिखा कि मे द डॉक्टर कम, अल्लाह करे डॉक्टर आ जाए. आप हॉस्पिटल पे गए, आपको डॉक्टर की ज़रूरत थी, तो आपने पूछा कि डॉक्टर आएगा, तो आपको जवाब बताया कि डॉक्टर मे कम, हो सकता है डॉक्टर आ जाए. अब आप इंतज़ार करें और आप क्या करें? अल्लाह करे डॉक्टर आ जाए. May the doctor come. So this may being here, that makes this sentence is kind of a optative sentence. These types of sentences, optative sentence, ये दुआया sentences हो जाते हैं. They show this type. She is sleeping. She okay. ये जो may और she is sleeping, she may be sleeping, यहाँ पे इसका कोई context तो नहीं है, लेकिन may और may be को हम फिर डिस्कस करेंगे. जब हम टेंस स्ट्रक्चर्स में जाएंगे तब देखेंगे कि ये और इस टेंस का क्या फंक्शन है और मे बी का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. तो ये मे और मे बी का फ़र्क है. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट मे, नॉट मे बी. वी विल टॉक अबाउट मे बी इन टेंस स्ट्रक्चर्स. ओके, देन यू टॉक अबाउट शुड. अब शुड जो है ना, जब हमें कोई नसीहत करनी होती है तो हम ये तकरीबन 3 तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. एक शुड है, एक हैड बेटर है और एक ऑट टू है. तीनों यूज़ होते हैं सजेस्टिव सेंस में, लोगों को एडवाइस करने के, लोगों को हेल्प करने, गाइड करने के सेंस में यूज़ होते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में थोड़ा फ़र्क है. जब हम शुड यूज़ करते हैं, दैट मीन्स एडवाइस इन एन अथॉरिटेटिव स्टाइल. हियर आई यूज दैट अथॉरिटेटिव स्टाइल. देखिए जब कोई बड़ा बंदा, कोई जिम्मेदार बंदा, कोई अथॉरिटी आपको मशवरा देती है, सजेस्ट करती है, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं. यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर बिकॉज यू आर इल विद मलेरिया. इल विद, इल के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो विद लगता है. शी इज़ इल विद मलेरिया, शी इज़ इल विद कैंसर. सिक के साथ हम प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं. शी इज़ सिक ऑफ समथिंग बट इज इल विद. सो you should consult a doctor because you are ill with malaria. Should, this is authoritative, somebody on authority. कोई बंदा अथॉरिटी वाला आपको सजेस्ट कर रहा है, that's we use authoritative. Then the second use is had better. When we say had better, तो ये भी suggestion है, एक मशवरा है, लेकिन यहाँ पे you are using a suggestive mood, suggestive style. Suggestive क्या होता है? जब आप अगले बंदे को थोड़ा बहुत जो है वो मशवरा कुन अंदाज में कहते हैं कि अच्छा होगा डॉक्टर को दिखा दो. देखिए ऊपर आप बता रहे कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दैट्स यू आर यूजिंग योर अथॉरिटी. बट इन द सेकंड पार्ट यू आर टॉकिंग अबाउट अच्छा होगा डॉक्टर को दिखा दो. यू हैड बेटर कंसल्ट द डॉक्टर. ये जो स्टाइल है, यू हैड बेटर कंसल्ट द डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ
कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ सजेशन, सो दिस इज़ अ बिट सजेस्टिव, जो अक्सर तौर पे हम कहते हैं अच्छा होगा डॉक्टर को बता दो, अच्छा होगा पापा को बता दो, अच्छा होगा ये, इस सेंस के अंदर हमें हैड बेटर यूज़ करना चाहिए। तीसरा ये होता है कि यू आर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अच्छा, ये भी एक मशवरा है लेकिन इसमें हम ज़्यादा फ्रैंक होते हैं। तो पहली थी एडवाइस इन अथॉरिटेटिव, सेकंड थी एडवाइस इन अ सजेस्टिव स्टाइल एंड थर्ड इज़ एडवाइस इन अ फ्रैंक मैनर। बड़े दोस्ताना अंदाज में हम एक दूसरे को कहते हैं कि देन वी यूज़ टू आर्ट। जिस तरीके से मिसाल के तौर पे देखें, हम कहेंगे जी हमें रोज़ देर हो जाती है, वो हमारा इंतज़ार करते हैं, आज उनको देर हो गई है ना, तो हमें भी उनका इंतज़ार करना चाहिए, हमें भी उनका इंतज़ार करना चाहिए। वी आर टू वेट फॉर देम, वी आर टू वेट। अब आर्ट के बाद ट लगना ये लाजमी है क्योंकि ये जो है ना वो इन्फिनेटिव उठाएगा। बाकी ऊपर शुड बेयर इन्फिनेटिव था, हेड बेटर बेयर इन्फिनेटिव है, हेड बेटर के साथ आप इन्फिनेटिव नहीं यूज़ कर सकते। आप ये नहीं कह सकते यू हैड बेटर टू कंसल्ट, नो, यू हैड बेटर कंसल्ट द डॉक्टर। देखिए ये इन्फिनेटिव यूज़ करेगा, बेयर इन्फिनेटिव, कैन बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेगा, मे बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेगा, यू मे गो, यू मे प्ले, डॉक्टर मे कम, शी कैन ड्राइव, आप ये नहीं कहेंगे शी कैंट ड्राइव, नो, शी कैन ड्राइव। ये तमाम ऊपर जितने भी आपके मॉडल वर्ब गुजरे आपने देखा वो सब बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करे थे। सिर्फ यहाँ पे आर्ट जो आया है इसको इन्फिनेटिव चाहिए और आगे यूज टू आएगा उसको भी इन्फिनेटिव चाहिए। सो दीज आर द टू दे यूज दिस इन्फिनेटिव। यू आर टू कंसल्ट अ डॉक्टर बिकॉज यू आर इल विद मलेरिया, आर टू। तो इसमें हम थोड़ा मशवरा कुन अंदाज में हैं। उसके बाद एक मॉडल वर्ब है जिसको हम कहते हैं यूज टू। दिस मॉडल वर्ब इज़ यूज्ड स्पेशली टू शो द पास्ट हैबिट्स, वो काम जो आप माजी में करते थे और अभी आपने छोड़ दी। वी यूज दिस अगेन। द अरब्स यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स बिफोर द अराइवल ऑफ द होली प्रॉफिट। यूज टू, कोई भी काम आप माजी में करते थे अभी आपने छोड़ दिया। आई यूज टू लिव इन कराची, मैं कराची में रहा करता था। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करते थे लेकिन अब छोड़ दी। जो काम आप माजी में करते थे अब आपने छोड़ दिया। यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये ब्रिटिश इंग्लिश वाले यूज टू यूज़ करते हैं, जो अमेरिकन वाले होते हैं वो वुड लगा देते हैं। और आप हैरान होंगे, हमारे तकरीबन पाकिस्तानी जो बुक्स है 9th मैट्रिक में, वहाँ पे कभी कहाँ पे यूज टू लगा हुआ, कहाँ पे वुड लगा हुआ, ये थोड़ी कन्फ्यूजन है। अमेरिकन जो है ना वो वुड यूज़ करते हैं, जिस तरह वो कहेंगे ना आई यूज टू प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेला करता था अभी छोड़ दी। अमेरिकन बैठा हुआ वो कहेगा आई वुड प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेला करता था। तो ये थोड़ा जहन में रखेंगे, यूज टू का और वुड ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का जो डिफरेंस है दैट शुड बी अंडरस्टूड। हाँ, बाकी जो यूज टू हम बेतौर एडजेक्टिव यूज़ करते हैं उसका मतलब और होता है। एक यूज टू जो ऊपर मॉडल वर्ब है, एक यूज टू एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है जिसका मतलब होता है आदी हो जाना किसी चीज़ का। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप इतना जल्दी कैसे उठ जाते हैं, हाउ डू यू गेट अप सो अर्ली, आपने कहा आई एम यूज टू इट, मैं इसका आदी हूँ। इनिशियली यू विल फील सम प्रॉब्लम, शुरू में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, बट विद द पैसेज ऑफ अ टाइम यू विल गेट यूज टू इट। पहले आपको कुछ प्रॉब्लम आएंगे लेकिन कुछ वक्त के बाद आप इसके आदी हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी यूज दिस यूज टू। उसके बाद एक मॉडल वर्ब यूज़ होता है डेयर। डेयर का मतलब है आपकी हिम्मत कैसे, हाउ डिड यू डेयर इंटर माई ऑफिस। आप तो इंटर माई ऑफिस इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं, दोनों पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे मैंने इन ब्रैकेट रखा है, आप लगाएं ना लगाएं। हाउ डिड यू डेयर इंटर माई ऑफिस, हाउ डिड यू डेयर टू इंटर माई ऑफिस, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी मजाल कैसे हुई। ये जो है एक स्पेसिफिक यूज़ है डेयर का। और मस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हम कहते हैं यू मस्ट वेट, तो हमारा मतलब होता है कि आप ज़रूर इंतज़ार करें, दैट्स मस्ट। तो मस्ट लगाया कर हम किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को, यू मस्ट कम ऑन टाइम, यू मस्ट गिव टाइम टू योर स्टडीज़, यू मस्ट वेट फॉर हिम। सो दिस मस्ट बेसिकली इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दैट शो द स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सेंस हो गया। तो आपने जो है ना वो एक्शन वर्ब देखे, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब या टेंस वर्ब देखे, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब का आपस में जो है ना वो रब्त देखा, फिर मॉडल वर्ब्स देखा, और सबसे आखिर में वी विल टॉक अबाउट दीज कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए ये वो वर्ब होते हैं जो खुद काम नहीं करते लेकिन उसका काज बनते हैं, देयरफॉर वी कॉल देम कॉजेटिव। इसके नाम से जाहिर है दे आर कॉजेटिव। व्हाई वी कॉल देम कॉजेटिव? वी कॉल देम कॉजेटिव बिकॉज दे शो द कॉज। वो खुद काम नहीं करते बल्कि काम करने का सबब बनते हैं। तो दे आर का हमारे यहाँ तकरीबन 2 कॉजेटिव वर्ब यूज़ करते हैं, एक गेट होता है, एक मेक होता है। दैट कॉज समवन टू वर्क फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए काम करते हैं।
अब आप या तो मेक लगाते हैं या गेट लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हैव भी लगाया जाता है, तो हैव तकरीबन जो है ना, आई एम हैविंग माई हेयर कट, ओके, तो वही सेंस जो है ना गेट के तौर पे हम लगाते हैं, तो आप वो, लेकिन हैव जो है वो इनफॉर्मली यूज़ होता है, बाकी फॉर्मली वी यूज़ टू पॉजिटिव वर्ब से द गेट और मेक। अब थोड़ा इनका डिफरेंस देखेंगे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड मेक। देखें, शी मेक्स मी लाफ, इसका मतलब क्या है, इसमें देखें शी सब्जेक्ट है, शी मेक्स मी लाफ। अब ये देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, हंसने का, लाफ, कौन हंस रहा है, मी, तो मी इसका क्या है, सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, लाफ का। ये एक्शन वर्ब इसमें लाफ है, उसका एक्टिव सब्जेक्ट मी है। अब इस पार्ट में आए, शी मेक्स मी, इसका जो काजेटिव सब्जेक्ट है, काज कौन बनी है, शी, मेक्स क्या है, काजेटिव वर्ब, शी काजेटिव सब्जेक्ट और मेक काजेटिव वर्ब, और मी एक्टिव सब्जेक्ट और लाफ एक्टिव वर्ब। इस सेंटेंस के अंदर जो मेक की स्ट्रक्चर है ना, वो हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करती है। सर मैं नहीं हंसता, वो मुझे हंसाती है, शी मेक्स मी लाफ। मैं नहीं लिखता, शी मेक्स मी राइट। एक बंदा किसके घर पे फ़ोन करता है, अक्सर करता रहता है, उस पर केस होता है, अरेस्ट होता है, पुलिस वाले उसको ले आते हैं जज के पास। जज पूछता है कि आप इस घर पे फ़ोन क्यों करते हैं, तो वो कहता है कि सर आई डोंट कॉल, मैं फ़ोन नहीं करता। अली मैक्स मी कॉल, अली मैक्स मी कॉल, अली मुझसे फ़ोन करवाता है। देखिए ये पॉजिटिव वर्ब है, ये खुद काम नहीं करता, दूसरे से करवाता है। अली मैक्स मी कॉल, आई डोंट कॉल सर, अली मैक्स मी कॉल। तो ये जो शी है, जो एक्टिव सब्जेक्ट पॉजिटिव सब्जेक्ट है, और यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब मेक है। ये रूल है कि मेक जब भी आएगा तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद जब वर्ब यूज़ करना तो इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना, बेयर इन्फिनिटिव। शी मेक्स मी लाफ, टू लाफ नहीं होगा, शी मेक्स मी लाफ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। यहाँ पे बेहतर है फर्स्ट फॉर्म, व्हाट वी कॉल बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव, हमेशा आपको बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना होगा, यूज़ बेयर इन्फिनिटिव। वेल, thank you very much Zulfikar and Safir. Actually these classes are recorded and later on I put on YouTube channel as well. So the question is that if I would answer you and I would say greet you as well, but when we put these classes on the YouTube channel recording, then there these names and these things become a kind of irrelevant. फिर वहाँ महसूस होता है कि यहाँ पे अचानक सर ये किससे बात कर रहा है। तो इसलिए ये जो क्लासेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी को मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तौर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको भी ये काम आए और फ्यूचर में स्टूडेंट्स को भी काम आए। इसके लिए मैं यहाँ पे 1 बाय 1 जुल्फ़िकार या किसी के सलाम का जवाब वगैरह माज़र से नहीं देता हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन होता है स्क्रीन पे तो मैं उसको ज़रूर ट्रीट कर लेता हूँ, लाइक दैट। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। यस, स्क्रीन नेटवर्क का शायद इशू था और आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। कमिंग बैक, शी मेक्स मी लाफ, मैं नहीं हंसता, ये मुझे हंसाती। अब देखिए इस पार्ट के अंदर शी जो है वो सब्जेक्ट का, सॉरी मेक जो है उसके बाद फ़ौरन सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब जो है ना उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप देखें कि शी काजेटिव ये इसमें आ गए। ही मेक्स मी कॉल, मैं फ़ोन नहीं करता, ये मुझसे फ़ोन करवाता है। ही मेक्स मी स्टील, ये मुझसे चोरी करवाता है। ही मेक्स मी बैग, ही मेक्स मी लाई। अक्सर जो आप टेस्ट वगैरह जॉब वगैरह का टेस्ट लेते हैं या इंटी टेस्ट मेडिकल इंजीनियरिंग में आते हैं तो वहाँ से तकरीबन पॉजिटिव का ना एक क्वेश्चन वो ज़रूर डालते हैं। तो इसमें जो गेट के सेंस में ना आपको और मेक के सेंस में ये सिर्फ देखना है कि मेक के बाद आपने सब्जेक्ट रखना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। अब आते हैं गेट के ऊपर। गेट क्या होता है कि द गेट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, गेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और यहाँ पे वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। आई गेट एन एसे रिटन। आप हैरान होंगे अगर आप अब किसी बच्चे को कहें ना कि मैं बाल कटवाता हूँ, आप इसके तर्जमा करें तो वो क्या कहेगा, आई कट माई हेयर।
अब देखिए आई कट माई हेयर का मतलब है कि मैं बाल काटता हूँ। असल में आप तो बाल नहीं काट रहे, बाल काटने का काम कौन करा, वो तो बार्बर कर रहा है, ठीक है। आप तो सिर्फ उसका सबब बने हैं, काम जो है ना बार्बर करा है। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि आई कट माई हेयर, आपको कहना होगा आई गेट माई हेयर कट, आई गेट माई हेयर कट, आई गेट द कार रिपेयर, मैं कार रिपेयर करवाता हूँ। वी यूज दिस थिंग, आई गेट एन एसे रिटन, I get the hair cleaned, I get the room clean, I get the car repaired, I get my hair cut। इसमें जो हम गेट के बाद देखें तो गेट के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। अभी अगर इस सेंटेंस को देखें, आई इसका क्या है, काजेटिव सब्जेक्ट है, गेट क्या है, काजेटिव वर्ब है, एन ऐसे क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, रिटन का। काम क्या हो रहा है, लिखना। क्या चीज़ लिख रही है, ऐसे। इससे लिखने वाले कौन है, उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रेफर करें तो हमने गेट लगाना है। अगर सब्जेक्ट को रेफर करना है तो आपने मेक लगाना है। ही मेक्स मी राइट, मैं नहीं लिखता, ही मेक्स मी राइट, ठीक है। तो मेक जो यूज़ होगा वो सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, बतौर काज दिखाने के लिए, और जो गेट यूज़ होता है फिर वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रेफ़र करते हैं बतौर काज, जो है ना मैं ये काम करवाता हूँ। अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं काजेटिव सेंटेंसेस को, मैं जी कमरा साफ़ करवाता हूँ, आई गेट द रूम क्लीन्ड, मैं ऐसे लिखवाता हूँ, आई गेट एन ऐसे रिटन, मैं गाड़ी रिपेयर करवाता हूँ। देखिए रिपेयर करना वो होगा आई रिपेयर द कार, मैं गाड़ी रिपेयर करवाता हूँ। यहाँ पे आप गाड़ी की बात करें तो अब गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है तो आपको गेट लगाना पड़ेगा। मैं इससे बनवाता हूँ या इससे गाड़ी बनवाता हूँ, आई मेक हिम रिपेयर द कार, आई मेक हिम। अब आप मेक लगाएं क्योंकि आप उससे सब्जेक्ट की बात करें तो आप मेक लगाएं, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो आप गेट लगाएं। इसका बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो है इनको यूज़ भी करते हैं। जी मैं खाना पकवाता हूँ, आई गेट द फूड कुक्ड, ओके। मैं पैसे तकसीम करवाता हूँ, आई गेट द मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मैं एटीएम भरवाता हूँ, आई गेट द एटीएम फिल्ड, लाइक दैट। वेल, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में हम यूज़ करते हैं इस गेट और मेक को। दीज आर पॉजिटिव वर्ब्स। जस्ट शॉर्ट टेस्ट, थोड़ी देर के लिए आप इस मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करें अपने सेंटेंसेस में, तो फिर हम नीचे आपको उसको की दिखाते हैं। दिस इज लास्ट टेस्ट, जस्ट ए शॉर्ट टेस्ट फॉर यू टू चेक योर स्किल्स, ओके। प्लीज़ पुट मॉडल वर्ब्स जो आप समझते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। यू कैन पुट दैट इज़ अ शॉर्ट टेस्ट फॉर योर स्किल्स, देन वी विल गो फॉर सेमेंटिक्स। Thank you very much. Let's check his this is the key. He should get permission, he had better get permission, both are possible. The train may come on time, that's a possibility. They used to live in Karachi, they would live in Karachi, that shows the just in the past certain habits what they have stopped or quitted. It is last that today you must, because why we are using must here, that's a strong obligation, because this is last date. It's last date today, you must submit your fees. May he live long. This may, that's pray, dua, optative sentence.
May he live long. How dare she came in my office? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस आने की? How dare? I can drive. That shows your potential that you can do it. Good. 2 must. Okay. Yes, that's right. Okay. 3 should. Okay. 3 could be they should live in Karachi. हाँ, अगर should आप नसीहत के तौर पे लगाना चाहते हैं तो एक और चीज़ है, वो भी हो सकता है। इस तरह नीचे अगर आप ये कहें कि he may drive, तो वहाँ भी आप may भी लगा सकते हैं। देखिए रॉन्ग नहीं, क्यों may drive का मतलब फिर ये हो जाएगा कि आप इजाज़त दे रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। मैं जस्ट आपके जैसे कि स्वीपिंग स्किल्स देखे थे, इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं रखे थे। अगर मैं ये इसमें टेस्ट में कंडक्ट करता हूँ तो मैं फिर ऐसे ऑप्शन रखता कि जिसमें सिर्फ कैन ही पॉसिबल रहता और बाकी ऑप्शंस वहाँ पे जो है ना वो सूटेबल ना होते। सो यस मे फॉर प्रेयर, दैट्स नाइस, वी कैन यूज़ मे फॉर प्रेयर, मे ही लिव लॉन्ग। सो दिस वे दिस वाज द जस्ट अब हम फर्दर जो है ना वी विल गो टू द वर्ब्स, forms of verbs and action verbs and etc. So we will conduct in the next class. This is a time to go back to our syntax side, and we would okay. So remember that this verb is a very important part, very integral part of this language, and we will give it appropriate time to this area. We will not take it for granted. Yes, can for capability, exactly. So in today's class we talked about these different types of verb. Means what is action verb, what is helping verb, tense verb, auxiliary verb, and what are linking verb, are copular verb, then what are modal verbs, what are causative verbs, and how they are being they are used in this language. We just discuss them with the example. Now in the second class we will go certain advanced areas of verb. Means how these intensive verbs and extensive verbs, and what are the dynamics verbs, and what are stative verbs, and what is the difference between these dynamic and stative verbs, and what are their moods. That's very important, and what mood they denote to. So in the second integral means कोई चीज़ जिसका अहम या significant या major part होता है तो we call it integral. इसकी स्पेल होती है INTEGRA, integral means central main. तो उस सेंस के अंदर जो है we will just talk about that areas. We will take it in advanced level. जो स्टूडेंट्स प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की टेस्ट भी ले रहे हैं तो उनको ये एरियाज़ बहुत ज़्यादा काम देंगे उनकी प्री इंट्री टेस्ट की तैयारी के हवाले से, और तकरीबन जो प्री इंट्री टेस्ट के टेस्ट आते हैं, सवाल आते हैं, वो तमाम इन एरियाज से आते हैं। और जो जॉब के अंदर भी ज़्यादा जो टेस्ट आते हैं वहाँ पे यही वर्ब या इनके मूड्स या इनके एग्रीमेंट्स या वर्ब की डिग्रीज़, इस तरह के एडजेक्टिव की डिग्रीज़ या वर्ब के फॉर्म्स या टेंस स्ट्रक्चर्स, टेंस कॉम्बिनेशंस जो हम तीसरी क्लास शायद हमें टेंस को देनी पड़े, तो दीज थिंग्स वुड हेल्प यू ओवरऑल इन योर जॉब सिस्टम, इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज इन योर एकेडमिक लाइफ। और दूसरे वो साथी जो सिंपल लैंग्वेज के तौर पे इसको सीखना चाह रहे हैं, दैट्स इक्वली हेल्पफुल फॉर देम। लेकिन जो सिंपल लैंग्वेज में इंटर हो रहे हैं उनको मैंने इनिशियली बताया था कि दीज एरियाज आर फॉर करेक्टनेस। ओके, फर्स्ट यू इंटर द लैंग्वेज, यू कम इन टू द फाउंडेशन। When you come in a foundation, don't worry about that thing. वहाँ पे आप इन चीज़ों के बारे में इतने परेशान ना हो जाए। Initially you start responding using that language. With the problems, with the mistakes, go with that. Don't worry about that. Slowly, gradually, keep using and listening this material. This material again will give you a kind of confidence, and where whatever the areas where you would be lacking in, the areas where there will be shortcomings. So these shortcomings would be fulfilled with the help of these classes. क्योंकि ये तो अब recorded classes हैं, for that हम उसको एक ही मरतबा आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं ताकि in future you, whenever you feel any problem in adjective, go to that area of adjective, you can check it, okay. And if you have any problem in a verb, go to area of class of the verb and you can find it there. And this all material will be there on YouTube channel as well.
and it is properly categorized with the description, noun, verb, adjective, preposition, so that it could save your time, it could save my time. Even in the future, those students who need it, this course may help them. So this is what I'm planning, and I'm recording it, and I'm trying to save this material for future reference. Yes, exactly. Kashmir is an integral part of Pakistan. That's nice. Yeah, that is the debate is going on in that sense. So let us talk about now. We are switching towards semantics. We would in the last class we covered speech. I would just play that speech, and then we will cover other areas. I can tell you that when I met the SIA pilots, I didn't meet them on TV, I met them face to face. So 5 feet across the table so they can see me and see whether I'm still vigorous, able to campaign and take them on, whether it's worth taking me on. And I offered them 2 choices. Either you argue, you stop this intimidation, which is what it was, bringing SIA right down, disrupting services, ruining its reputation, millions of dollars worth of advertisements and sales ruined within a matter of 2 weeks. I gave them a choice. Continue this, and I will, by every means at my disposal, teach you and get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. And I'm prepared to start all over again. Or stop it. Get back to work, restore discipline, then argue your case. Took them 65 minutes. And they decided, okay, it isn't worth the fight. Why? Because they know they'll lose. They know that I'm prepared to ground the airline. They know that I can get the airline going again without them. And let there be no mistakes about this. Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. That's the beautiful part of this speech, okay? And I like this particular And let there be no mistakes about this. Whoever governs Singapore must have that iron in him. Look at the body language of a leader, okay? This is what we need to a sort of a commitment from a leader. And he went to negotiate the pilots of SIA, Singapore International Airline, who were on a strike, and they disrupted the discontinued the services, ruin its reputation, barbad kar dena shohrat ko. He went them face to face and he asked them that stop this intimidation, don't intimidate, ye dhamkiyan dena, threat dena band kare. He asked them to come first, restore the service, restore the service. First restore the service, then sit and argue your case. That was his level. Otherwise, he asked them to get ready to be fired. When you fire somebody, you just sack that person. अगर मैं कहूँ कि I am sacked, इसका मतलब है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया. I am fired. He is fired. He is sacked. So that was the confidence of this language, this leader, that he didn't allow those pilots to blackmail the government and disrupt the services and ruin its reputation, because this SIA, Singapore International Airline, was a governmental public department, and he didn't allow anybody to blackmail. And he wished that the person who is a leader
must have this iron hand, because this is not a game of cards. This is a life of your life and my life, because this is a matter of a life. This is a matter of generations. पता नहीं कितने नस्लें जो है ना वो इस पे जो है ना वो इन्हिसार करती, दीज आर जनरेशंस टू कम। ओके, ये उन तमाम नस्लों की बात है जो जनरेशंस आने वाली हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ कमिटमेंट व्हाट वी नीड ऑन द पार्ट ऑफ ए लीडर एंड टू इमर्ज एज ए गुड लीडर लाइक दैट। Thank you very much. Our next video was about how the political leaders they come and they corrupt the people, and this was this was about Joseph Stalin. He brings a rooster or a cock in a parliament. Once upon a time he brings a rooster and a cock in a parliament. He plucks the feather of the roosters, उसके पर तोड़ता है, and then gives some grain to pecking. जब कोई परिंदा अपनी चोंच से चुगता है तो वी यूज वर्ड फेक, हम ईट नहीं लगाते। दैट कॉक इज फेकिंग ग्रेन्स, फेक, सो सम ग्रेन्स फेक। एज अ रिजल्ट उसका नतीजा ये निकलता है कि वेयर एवर ही गोज टू, फिर वो कहीं भी जाता है, द रूस्टर फॉलोज हिम, वो जो मुर्गा है वो उसके पीछे पीछे आता है। आफ्टरवर्ड्स ही एक्सप्लेन्स, उसके बाद ये बयान करता है कि दैट द करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स डू द सेम विद द नेशन। उसने कहा कि फिर जो करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपने कौमों के साथ भी यही कुछ करते हैं। दे डू सेम विद देयर लीडर्स, मीन्स विद देयर नेशंस, विद देयर मैसेस आर सब्जेक्ट एंड पीपल। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड सिटीजन्स। सब्जेक्ट जो होते हैं वो राया है, और राया शुरू में जो बादशाह होते थे वो मुत्तलिक अनान बादशाह होते थे, और वो बादशाह जो है वो अपने आप को जो है वो खुदा का नुमाइंदे के तौर पे पेश करते थे। आम जो लोग होते थे उनको वो ब्रेन वॉश करते थे, उसके जहन में ये इमेज बिठाते थे कि जो बादशाह होता है वो ज़िल्ले इलाही होता है। ज़िल्ले का मतलब है साया, अल्लाह का साया होता है, ज़िल्ले सुबानी, ज़िल्ले इलाही। और वहीं से फिर वो लोगों के लिए ये होता है कि आपको बादशाह सलामत जो भी दे वो आपका, आप पे उसकी रियायत है, उसकी इनायत है, उसकी अता है। तो ये इस तरह के टर्म यूज़ होते थे लोगों के लिए, वो उसकी सब्जेक्ट्स होते थे, मैसेज होते थे। बाद में जब हम एक आज़ाद रियासत के तौर पे हम रहने लगे तो अब हम वी आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट्स बट वी आर सिटीजन्स। तो फिर वो एक आज़ाद जो रियासत होती है उसके वो लोग जो होते हैं वो उसके शहरी होते हैं, और जो सिटीजन्स होते हैं उनको रियायतें नहीं दी जाती, उनको अपने राइट्स दिए जाते हैं, उनके हुकूक होते हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड सिटीज़न। अभी भी जो मुल्क काफ़ी हद तक कॉलोनाइज रहे, उसके बाद अंग्रेज़ की कॉलोनीज़ वहाँ से ख़त्म हुई, उनके बाद जब वहाँ पे आज़ादी की मूवमेंट्स चली, तहरीकें, तो वो लोग जो है ना वो ब्रिटिश कॉलोनियल या दूसरे यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से तो वो आज़ाद हो गए, लेकिन जो बाद में आने वाले रूलर्स थे उनका तरीक़ाकार फिर वही रहा जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स का था, जो लोगों को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करते थे, ना कि एज ए सिटीज़न के तौर पे। तो आज तक भी जो हुकूमत के काफ़ी जो हुकूमतें हैं वो उसी अंदाज पे लोगों को ट्रीट करती हैं, और फिर उसमें यही होता है कि उन्हीं के हुकूक को जो न पहले रोक दिया जाता है, बाद में किसी को रोड, किसी को स्कूल देकर ये बावर कराया जाता है कि हमने आपको इनायत की है, अता की है। ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट इज़ राइट ऑफ ए सिटीज़न, ये एक शहरी के हुकूक हैं। वंस यू आर टैक्स पेयर, जब आप टैक्स देते हैं, दैट्स राइट ऑफ एजुकेशन, दैट ए सिटीज़न टू गेट गुड एजुकेशन, good health facilities, security, safety. That's what is the right of an individual citizen. So they used up their money through corruption and then give them some in form of, वो उन्हीं के पैसे जो है ना पहले यूज़ अप करते हैं, फिर उन्हीं में से थोड़ा उनको देते हैं, तो फिर वो लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोड्स एंड हॉस्पिटल्स एंड ग्रांट्स, एंड द पीपल बिकम ग्रेटफुल टू देम। और लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि दैट दिस पर्सन गेव दिस टू मी, फ़लाँ बंदा जी हमारे पास फातह करने आया जी, फ़लाँ बंदा ने हमें रोड दिया, और वो पूरी उम्र उसको गाते रहते हैं। दिस व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल गेम, हाउ द पीपल who need to be termed are treated as an individual citizen of any country, but if they are being exploited, their rights are used up. Used up होता है किसी के हुकूक को जो है ना वो निगल जाना, किसी के हुकूक खा जाना या उन पे अपना तसल्लुत कायम कर देना। सो दिस व्हाट
is where these political things are going on. So these two clips we covered in previous class, and we again repeated for your review. And the fresh clip what we covered today is about the position what you have. This really beautiful clip, I love it. And you understand that whatever you are, that is what there was a former Undersecretary of Defense who was invited to give a speech at a large conference, about 1,000 people. And he was standing on the stage with his cup of coffee and a styrofoam cup, giving his prepared remarks with his PowerPoint behind him. And he took a sip of his coffee and he smiled and he looked down at the coffee. And then he went off script. And he said, you know, last year I spoke at this exact same conference. Last year I was still the Undersecretary. And when I spoke here last year, they flew me here business class. And when I arrived at the airport, there was somebody waiting for me to take me to my hotel. And they took me to my hotel and they had already checked me in and they just took me up to my room. And the next morning I came downstairs and there was someone waiting in the lobby to greet me, and they drove me to this here same venue. They took me through the back entrance and took me into the green room and handed me a cup of coffee in a beautiful ceramic cup. He says, I'm no longer the Undersecretary. I flew here coach. I took a taxi to my hotel and I checked myself in. When I came down the lobby this morning, I took another taxi to this venue. I came in the front door and found my way backstage, and when I asked someone, do you have any coffee? He pointed to the coffee machine in the corner, and I poured myself a cup of coffee into this here styrofoam cup. He says the lesson is, the ceramic cup was never meant for me. It was meant for the position I held. I deserve a styrofoam cup. Remember this. As you gain fame, as you gain fortune, as you gain position and seniority, people will treat you better. They will hold doors open for you. They will get you a cup of tea and coffee without you even asking. They will call you sir and man, and they will give you stuff. None of that stuff is meant for you. That stuff is meant for the position you hold. It is meant for the level that you have achieved of leader or success or whatever you want to call it. But you will always deserve the styrofoam cup. Remember that. Remember that lesson of humility and gratitude. You can accept all the free stuff. You can accept all the perks. Absolutely, you can enjoy them. But just be grateful for them and know that they're not for you. I remember getting off the Acela. I took the Acela from New York to Washington, D.C. And I got off the train like everybody else. And I was walking down the platform like everyone else, and I walked past General Norty Schwartz, who used to be the Chief of Staff of the United States Air Force, the head of the Air Force. And here I did, you see a guy in a suit, schlepping his own suitcase down the platform just like me. And just a couple months ago, he was flying on private jets and he had an entourage, and other people carried his luggage. But he no longer held the position. And so now he got to drag his own suitcase. And never did it sort of remind me more that none of us deserve the perks that we get. We all deserve a styrofoam cup. That's really important. Important in a sense that this clip was about a person who came to address to a conference, and he had this styrofoam cup in his hand of a tea. And he went to the mic and addressed the people about the position के पिछली साल भी वो इसी कॉन्फ्रेंस में आया था. By then he was a state under secretary. तो वो जिस मनसब पे फाइज था, he was flew with business class ticket. तब उसको बिजनेस क्लास में जो है ना वो ट्रैवल करने का टिकट मिला. When he reached the airport, somebody was there waiting. जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहाँ पे कोई इंतज़ार कर रहा था. And he was driven by taxi to a hotel. उसको होटल पे ले गए. And again some people they showed him the room. उसको कमरे तक ले गए. But they filled proper protocol and perks and privileges and like that. Then on the next morning,
When he came down, again somebody was waiting there, and again they took him to the venue and brought him to the back door and gave him a coffee in a ceramic cup. बड़े खूबसूरत जो है ना वो चीनी के कप में उसको वो कॉफ़ी उसने उसको दी गई. एक साल के बाद जब वो वापस आया था उसी कॉन्फ्रेंस में, but now he was not under a secretary, he was a common man. Nobody gave him this business class ticket. Nobody was waiting at the airport. He himself took his luggage and went to the hotel. And on the next morning, again he got another taxi to reach the venue of the conference. And when he reached the conference, nobody greeted him. When he asked somebody, a volunteer, okay, would he be able to have a coffee? इसको coffee मिलेगी? So somebody pointed out at the one corner और उसको बोला वो corner में चले जाओ, वहाँ पे है. और वहाँ पे जो styrofoam कप होते हैं आमतौर पे disposable कप, वो कप उसने वहाँ से उठाया, उसमें कॉफ़ी भरी, and he came to the stage. और now he's showing us that when the people लोग आपको the people give you respect, people call you sir, लोग आपको sir कहते हैं, madam कहते हैं. That's all about the why, because of the position जो आपके पास जिस काम पे आप होते हैं, जिस जगह पर आप होते हैं. That's only because of this thing. आप बहुत से लोगों को देखें, once they come in a certain position, they just become egoist, they become egocentric, वो अनापरस्त हो जाते हैं, they lose their humanity, वो अपनी आर्जी खो बैठते हैं, and they try to impress people with the position or place they command, और वो ये शो कर रहे होते हैं कि उनके पास ये place है, ये position है, और they try. But the reality is quite different. This is some temporary things. बोला मैंने पिछले दिनों ये जब ट्रैवल करा था, तो जब ट्रेन से मैं उतरा तो वहीं से वो आर्मी का यूनाइटेड नेशन अमेरिका का जो आर्मी स्टाफ था वो भी जो है वो ट्रेन से उतरा था, और ही वॉज शॉपिंग अप हिज ओन बैग्स. ओके, वो भी अपनी बैग्स को घसीटता हुआ वहाँ से उठाता हुआ जो है ले जा रहा था. यही वो बंदा था जिसके 2 महीने पहले फुल प्रोटोकॉल के साथ कोई दूसरा इसकी लगेज को और चीज़ों को उठाता था जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे था. बट वंस यू लीव दैट पोजीशंस you become a normal man. So what you deserve, that is again this styrofoam cup. Ultimately this is what is the life. And through these all perks, privileges, these momentary protocols and these places are positions what we get in life, and we are being carried away by these temporary trance of these positions and places we own in our life. But remember, these things are temporary. Very soon we come out of that trance. We think that life is the name of something different what we didn't enjoy. और अक्सर में महसूस होता है कि ज़िंदगी तो किसी और चीज़ का नाम था जिसको हमने enjoy नहीं किया. So my dear student, must work hard, and that's your right to go to a prominent position. That's your right. But remember, this right and these perks, they are only connected with the positions you own. And once this position is over, you and me, everybody is like a normal man. And what is the beauty of your life, being an individual, living in normality, that is what is the beauty of every person's life. But most often it has been noticed that the people are being carried away by the trance and by the awe of their temporary positions and places and possessions, and sometimes designations, sometimes their social slots, sometimes their social status, sometimes other things in their locality and surrounding. They unnecessarily turn to become proud. But life is not of that. Life is a simplicity, and the beauty goes with that thing. Thank you very much with great love and care, and thank you very much Zahid, thank you very much Ayaz, and all of the fellows who are with this. By this we would end this class here, and hope so in the next session we would talk about additional advanced areas of verb and also some areas of semantics and etc. Till that, take good care of yourself. Bye bye. Thanks.